Hello, my dear students. Assalamu alaikum, everyone. In the last session, we learnt about the accounting in the books of hire purchaser and hire vendor. Right? For hire purchaser, it was cash price method, and for hire vendor, it was sales method. I gave you the summary of the accounting entries where I drawn the entries in the books of purchaser and vendor one by one. So this is a comparative chart that will give you a very clear idea in your mind. आपको एंट्रीज रटनी नहीं पड़ेगी, आपको आसानी से सभी चीज़ें लॉजिकली समझ आ जाए और दोनों की बुक्स में सेम टू सेम टाइम पे आपको हर चीज़ का आइडिया क्लियर रह जाए, इसलिए मैंने ये कंपैरेटिव चार्ट बनाया है। इसी तरह मैंने आपको उस वक्त बोला था वी हैव टू टाइप्स ऑफ मेथड्स फॉर डूइंग द अकाउंटिंग in the books of hire purchaser as well as hire vendor, right? So if you see, we studied the first method in the last session, so we are now left with the last method of the accounting entries. That was interest suspense method, right? Both the name is same for both hire purchaser books and hire vendor books. It will be termed to be interest suspense method for both of the books. When we talk about hire purchaser and hire vendor, situations are all the same, right? When you enter into a hire purchase agreement, then you pay down payment or receive down payment for vendor. Thereafter you pay installment or receive installment, interest gets due, right? Thereafter you charge depreciation, pass them to profit and loss account, right? And thereafter you transfer the hire purchase sales account. Situations, that is the events column, is almost same. The thing is, the accounting entry to be done is somewhat changed. How, ma'am? If you see, for first we will see the hire purchaser, thereafter we will see the hire vendor. First is at the time when asset is acquired or sold. अभी आपने purchaser है तो you will acquire the asset. So what entry you will pass? Asset account debit at the full cash price amount, right? Thereafter interest suspense account debit. The name itself of the method suggests that it is an interest suspense method. मतलब क्या मैम, ये करना क्या चाहते हैं? एक सिर्फ उतना वो लोग करना चाहते हैं कि जो भी हायर परचेज प्राइस आपका कैसे आता है, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, राइट है ना? तो ये जो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट अमाउंट है, तो टोटल इंटरेस्ट आप पहले से ही एक जगह पे रख देते हैं और उसको बारी बारी एक्सपेंस वहाँ से लेके उसको एक्सपेंस में डालते, और कुछ नहीं है. इफ़ यू वांट टू सी, here the institutor is also given you, see the explanation. Under this method, at the time of transfer of possession of asset, total interest unaccrued is transferred to interest suspense account. अगर आपको याद हो तो हमें जो लास्ट मेथड की थी ना, उसमें हम लायबिलिटी साइड पे लिखते थे इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट येट ड्यू, राइट? तो वो अब निकल जाएगा. क्यों निकल जाएगा? क्योंकि वो दिखाना ना पड़े, इसलिए हम एक ऐसा अकाउंट ही क्रिएट कर दे रहे हैं इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के नाम पे, जहाँ पे पूरा अनअक्रूड इंटरेस्ट हम ट्रांसफ़र कर देते हैं. फिर बारी बारी जैसे ईयर्स आते जाएंगे, एट द लेटर ईयर्स, जैसे मानो फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ, आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जितना भी प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट ड्यू हुआ वो हम डेबिट कर देंगे हायर परचेजर की बुक्स में, क्योंकि वो उसका एक्सपेंस है, और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे. सो इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में कुछ और नया तूफान ही नहीं ला चुके हैं. जो चीज़ हमने वहाँ पे की थी उसी तरह का है, सिर्फ इतना है फ़र्क कि वहाँ पे हम इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट येट ड्यू लायबिलिटी के तौर पे खड़े रखते थे, वही चीज़ हम यहाँ पे एक जगह पे अक्यूमुलेट कर रहे हैं. तो एट द बिगिनिंग व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू अग्रीमेंट, आप समझ सकते हैं कि टोटल इंटरेस्ट बाकी ही है, हर एक इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट अनअक्रूड है, तो हम उसको इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में पूरे टोटल इंटरेस्ट अमाउंट से डेबिट कर देते हैं.
टू हायर वेंडर अकाउंट। अब हायर वेंडर अकाउंट का हमारा लायबिलिटी क्या बनेगा, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। तो हायर वेंडर अकाउंट को अब हम पूरी अमाउंट से कर देंगे। वहाँ पे हम क्या करते थे, हर साल इंटरेस्ट का लायबिलिटी वेंडर में खड़ा करते थे और सामने उसका चार्ज करते थे इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हम अभी हायर वेंडर पे पूरी लायबिलिटी डाल देते कि हमें उनको कैश प्राइस प्लस इतना टोटल इंटरेस्ट पे करना है, राइट। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। अब एक और बात बोलनी थी कि ये जो एंट्री मैंने आपको ये बताई, इफ यू सी हियर, दिस एंट्री, राइट, ये जो मैंने एंट्री आपको बताई ना, ये एंट्री दो तरह से हो सकती है। मतलब क्या मैम, यहाँ पे मैंने दो एंट्रीज को मिक्स करके एक एंट्री बनाई है। अगर आप आपकी अपनी इंस्टीट्यूट की बुक्स में देखेंगे तो ये दो एंट्री अलग अलग उन्होंने पास की है। नथिंग टू, मतलब टाइम एक ही है, ऐसा मत समझना टाइम अलग है। टाइम एक ही है पास करने का, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अग्रीमेंट। लेकिन चीज़ ये है कि चीज़ ऐसा है कि दोनों को एक ही वक्त पास करना है, एक ही अकाउंट में जाने देना है, तो दोनों को हम अक्यूमुलेट करके कर रहे हैं। मतलब क्या मैम, अभी हमारे दिमाग में नहीं उतरा। आप देखिए यहाँ पे, व्हेन एसेट इज अक्वायर्ड एंड व्हेन टोटल फॉर द टोटल इंटरेस्ट पेमेंट, तो ये कब कर रहे हैं, अग्रीमेंट के दिन पे ही। हाँ, ये चीज़ समझ लेना, अभी अग्रीमेंट के दिन पे टोटल इंटरेस्ट पेमेंट अक्रूड है, राइट, ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, अनअक्रूड ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट। अनअक्रूड ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, राइट। तो डेट ऑफ अग्रीमेंट के दिन ही हम ये एसेट खरीद रहे हैं उसका एंट्री करेंगे और ये टोटल इंटरेस्ट का एंट्री करेंगे, राइट। नाउ इफ़ यू सी, उन्होंने दो एंट्रीज पास किए। फर्स्ट उन्होंने बोला एसेट अकाउंट डेबिट, यू विल रिसीव द एसेट, एसेट कम्स इन, राइट, एंड हायर वेंडर इतना लायबिलिटी आपका खड़ा होगा वो उन्होंने क्रेडिट किया, ठीक है। ही इज़ द पेएबल वन, ही इज़ योर लायबिलिटी एट द अमाउंट ऑफ फुल कैश प्राइस। फिर उसी दिन उन्होंने दूसरी एंट्री पास की, हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट। यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट अमाउंट से हम करेंगे कि इतना अनअक्रूड इंटरेस्ट है, और टू हायर वेंडर अकाउंट, ही इज़ द लायबिलिटी टू होम द इंटरेस्ट इज पेएबल, राइट। तो ये दो एंट्रीज एक ही दिन की। अब आप अगर इसमें देखें तो हायर वेंडर दो बार क्रेडिट हो रहा है, तो मैंने इसको मर्ज करके एक एंट्री पास कर दी, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड। अब आपको इससे बहुत वाकिफ़ हो जाना यार, नाउ यू आर गोइंग टू द प्रैक्टिकल लाइफ, सो यू हैव टू डू दिस, राइट। सो अभी तो मैं इतना डिटेल में जा रही हूँ, लेकिन अब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें मैं क्या करती हूँ। दोनों को मर्ज करने के लिए एसेट मेरा डेबिट होगा, राइट, फिर इंटरेस्ट सस्पेंस मेरा डेबिट होगा, और क्रेडिट तो एक ही हो रहा है दोनों पार्ट में, हायर वेंडर। अब मेरा अमाउंट क्या आएगा, ये आएगा कैश प्राइस, राइट, ये आएगा टोटल इंटरेस्ट, और ये आएगा कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। अगर आप पोस्टिंग करें वो दो एंट्रीज की, तो भी आप देखें यहाँ पे क्या होता है, हायर वेंडर में दो एंट्रीज की वजह से क्या आ जाता है, एक कैश प्राइस वाला अमाउंट और एक टोटल इंटरेस्ट वाला अमाउंट। तो यही चीज़ हमने कर दी एक साथ। और अगर एसेट में जाते तो सिर्फ कैश प्राइस जाती, तो वही चीज़ तो हमने की है। और अगर इंटरेस्ट सस्पेंस में जाते तो ओनली इंटरेस्ट जाता, तो वही चीज़ हमने की है, बट उसको मर्ज कर दिया। दिस सेव्स टाइम एंड इट इज़ एन एफिशिएंट वन, राइट, एंड इट इज़ एन एफिशिएंट वन, राइट। इस तरह से आप उसको एंट्री पास करेंगे। तो मैंने ये दो एंट्रीज को मर्ज कर दिए। अब मैम आईसीआई की बुक आप पढ़े और ऐसा बोले मैम ये क्या कर दिया आपने, कुछ अलग कर दिया। कुछ अलग नहीं किया, दो एंट्रीज को एक साथ एक वक्त का है इसलिए मर्ज कर दिया, राइट। वक्त एक है इसलिए मर्ज किया, ये दिमाग में अच्छे से बिठा देना। वक्त अलग होता तो हम मर्ज नहीं करते, राइट। चलो, सो आई होप दिस इज क्लियर ना। वही चीज़ उसी दिन हम हायर वेंडर की बुक्स में कैसे करेंगे। तो हायर वेंडर आपको एसेट बेच रहा है, फॉर हिम इट इज़ सेल्स, राइट। सो सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, वो आपका रेवेन्यू है, राइट, वो हमेशा आपका क्रेडिट होगा। लेकिन हायर परचेजर आपका डेटर बनेगा, राइट, ही इज़
he will become the debtor from whom you will receive the amount. He will become your receivable, right? तो that will be an asset for you. तो हायर परचेजर अकाउंट आप डेबिट करेंगे. कौन सी अमाउंट से डेबिट करेंगे? टोटल अमाउंट, फुल कैश प्राइस प्लस टोटल इंटरेस्ट, राइट, बिकॉज यू आर फॉलोइंग इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड. फिर आप क्रेडिट किसको करेंगे? हायर परचेज सेल्स को. दिस इज एन इनकम, दिस इज अ रेवेन्यू फॉर द हायर वेंडर, इसलिए आप उसको क्रेडिट करेंगे फुल कैश प्राइस अमाउंट से. thereafter टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, जो भी इंटरेस्ट अनअक्रूड है, वो जो इनका गेन होगा जो अनअक्रूड है उसको हम क्रेडिट करेंगे. अगर आप ICAI की बुक्स में देखेंगे तो वो एंट्री इसमें दोनों अलग नहीं दी हुई है, दोनों ही मर्ज कर दी है, एक साथ ही दी हुई है फॉर द वेंडर बुक्स, राइट. सो यहाँ पे मेरे को वो चीज़ में डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं थी. अब मैं इस मेथड का यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए. द मेथड इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू सेल्स मेथड. सभी चीज़ें सेल्स मेथड से बराबर चलती है, सिर्फ एक इतना है कि इंटरेस्ट का अकाउंटिंग चेंज होता है, राइट. कैश प्राइस मेथड बोलो या फिर सेल्स मेथड बोलो, दोनों ही सेम ही फॉलो हो रही है एक्सेप्ट interest accounting, right. Now under this method hire purchaser is debited with full cash price including the total interest in higher selling price. क्रेडिट हायर परचेज सेल्स एंड इंटरेस्ट सस्पेंस को होता है, वो मैंने आपको एंट्री पूरी समझा दी. फिर उन्होंने इंस्टॉलमेंट रिसीव होगा तब क्या एंट्री होगी, तो वो तो हम अप्रोप्रिएट टाइम के हिसाब से अभी आगे आगे समझेंगे. इन ऑल ये आपका जो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट होता है वो एट द एंड रिमूव हो जाता है, राइट. सिर्फ आपका इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होता है, और जब तक इंस्टॉलमेंट्स अभी पे नहीं होते हैं तब तक जो भी बैलेंस रह जाता है वो आप डेटर्स में डिडक्शन के रूप में दिखाएंगे उसको. क्योंकि आप देखेंगे डेटर में उतना लायबिलिटी अभी खड़ा नहीं हो जाता है तो उतना हम माइनस कर देते हैं. मैम क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया. अगर बैलेंस शीट में मैं आपको पूरा समझाती हूँ, पहले एंट्रीज समझ लेते हैं. तो ये तो इतना एक्सप्लेनेशन बुक्स में इतना लिखा था इसलिए मैंने अभी पढ़ के थोड़ा सा समझा दिया, राइट. चलो, टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट टोटल इंटरेस्ट अनअक्रूड उतना हम क्रेडिट करेंगे. ये हुआ आपका फर्स्ट एंट्री. सेकेंड एंट्री क्या होगा? अब आपने अग्रीमेंट एंटर कर लिया तो आप दूसरा सिचुएशन सोचें क्या होगा. डाउन पेमेंट आपको रिसीव होगा या फिर पे होगा. अगर परचेजर हो तो आप डाउन पेमेंट पे करेंगे, तो पे करेंगे तो हायर वेंडर का उतना लायबिलिटी कम हो जाएगा आपका. तो हायर वेंडर को आप डेबिट कर देंगे, आप उसको पे कर रहे हैं, ही इज़ द रिसीवर ऑफ योर मनी एंड द लायबिलिटी विल गेट डिक्रीज्ड टू बैंक अकाउंट. बैंक से आपका पैसा जा रहा है, बैंक इज द गिवर ऑफ योर मनी, राइट. और अमाउंट कौन सा आएगा? डाउन पेमेंट. सेम चीज़ अब हम जब वेंडर की बुक्स में बात करें तो क्या होगा बेटा कि बैंक अकाउंट डेबिट, हायर वेंडर इज रिसीविंग द मनी ऑफ डाउन पेमेंट एंड हायर परचेजर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. क्यों मैम? कि उतना डेटर्स आपका कम हो जाएगा, या इतना रिसीव हो गया, इतना आपका रिसीवेबल अमाउंट कम हो जाएगा, राइट. ही विल बी the giver of your money in else you say and bank will be the receiver of your money, right. तो ये हुआ आपका अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट से ही सेम एंट्री आपका पास होगा. दोनों सिचुएशन समझ लिए मैम. अब क्या होगा? आपका जो भी रिलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड है उसके एंड में इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट आएगा, राइट. हर साल आपका इंटरेस्ट ड्यू होता जाएगा. तो अब यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ड्यू हुआ फर्स्ट ईयर के एंड में मान लो, तो अब आप परचेजर की बुक्स के लिए, परचेजर के लिए इंटरेस्ट उनका एक्सपेंस है तो आप उसको डेबिट करेंगे, राइट. और जो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट हमने खड़ा किया था जहाँ पे हमने अनअक्रूड इंटरेस्ट बताया था उसको हम क्रेडिट कर देंगे, राइट, विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द रिलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड. आई होप इट इज अंडरस्टेबल. Next, for the vendor interest is an income so it will get credited, and similarly interest suspense account will get debited where you have accumulated the unaccrued interest amount. So this was the next portion. Now अब इंटरेस्ट तो ड्यू करवा दिया, अब क्या होगा? इंस्टॉलमेंट पे होगा, राइट. तो फिर परचेजर के लिए पेमेंट होगा और वेंडर के लिए रिसिप्ट होगा. परचेजर पे करेगा तो बैंक विल बी द गिवर ऑफ मनी, बैंक क्रेडिट होगा, और हायर वेंडर इज द रिसीवर ऑफ द मनी इफ़ यू से, और उतना लायबिलिटी आपका कम हो जाएगा इसलिए हायर वेंडर अकाउंट डेबिट होगा विद द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट. सेम चीज़ अगर आप हायर वेंडर की बुक्स में देखें तो बैंक विल बी द रिसीवर ऑफ मनी सो इट विल गेट डेबिटेड, एंड हायर
हायर वेंडर की बुक्स में I said के bank is the receiver of money and it will get debited. Thereafter what will happen? Higher purchaser is the giver of money or else you say उतना receivable amount आपका कम हो जाएगा, so वो credit होगा, right? With the amount of installment. अब मैम इंस्टॉलमेंट भी आ गया, अब कौन सा सिचुएशन आ गया, जरा सोचो बेटा कि ईयर का एंड चल रहा है तो ईयर के एंड पे एसेट पे डेप्रिसिएशन तो चार्ज करोगी ना, तो वो सिर्फ परचेजर कर सकता है, वेंडर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप सब्सटेंस ओवर फॉर्म वाला कंसेप्ट लगाए तो ओनरशिप भले ही वेंडर के पास है लेकिन पोजेशन परचेजर के पास है। परचेजर एक बार पेमेंट हो गया पूरी अमाउंट का तो उसके पास ही ओनरशिप आ जाने वाली है। तो इन ऑल इफ़ यू सी द सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ये एक्चुअल फैक्ट ये है कि अब ये एसेट परचेजर के पास ही रह जाने वाला है, वेंडर के पास वापस आने के चांसेस बहुत 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 रेयर है। सो इस वजह से परचेजर विल रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन फॉर द एसेट एंड इट विल रिकॉर्ड द एसेट इन इट्स बुक्स। नाउ डेप्रिसिएशन क्या एंट्री कैसे होगा, डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है, सो इट विल गेट डेबिटेड एंड सिमिलरली ऑन द बेस एसेट विल गेट क्रेडिटेड बिकॉज इतना वैल्यू आपका डिक्रीज हो जाएगा, राइट। और ये डेप्रिसिएशन कौन सी अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, कैश प्राइस अमाउंट पे। ये एंट्री आपके वेंडर के बुक्स में नहीं आएगी, राइट बेटा। नेक्स्ट सिचुएशन विल कम कि आपको अब ये इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन को ईयर एंड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना रहेगा। सो आप एंट्री क्या पास करते हैं, जब भी कोई भी अकाउंट को आपको पीएनएल में मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रांसफ़र करना रहता है तो जो भी उनका बैलेंस रहता है उसका ऑपोजिट साइड का इफेक्ट देके आप उसको क्लोज करते हैं, राइट, कोई भी लेजर अकाउंट को। सो इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन बोथ फॉर द परचेजर आर एक्सपेंस एंड हैव अ डेबिट बैलेंस। सो आप उसको क्रेडिट करेंगे एंड ऑन द सेम लाइन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, राइट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। सेम मैनर में वेंडर की बुक्स में भी आप उसको क्लोज करेंगे। इंटरेस्ट उनके लिए इनकम था, क्रेडिट बैलेंस था, तो आप उसका ऑपोजिट इफेक्ट डेबिट देंगे और पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट देंगे। ध्यान रखना वहाँ पे डेप्रिसिएशन का कोई भी एंट्री नहीं आएगा, राइट। तो ये हुआ ख़त्म। अब वेंडर की बुक्स में सिर्फ एक अकाउंट सभी इंस्टॉलमेंट्स के पेमेंट के वक्त ये एक ही रह जाता है कि हायर परचेज सेल्स उनका खड़ा होगा एट द ईयर एंड, राइट। तो ये फर्स्ट ईयर के इंस्टॉलमेंट के वक्त ही उनका हायर परचेज सेल्स अकाउंट खड़ा होगा। सो व्हाटसोएवर, चलो हायर परचेज सेल्स अकाउंट खड़ा है तो उसका मैम क्या करना है, ये आपका एक्चुअल में सेल्स है। यू आर सेलिंग गुड्स बीइंग अ हायर वेंडर, द इंटेंशन इज टू सेल द गुड्स। So for this it is the revenue and you will pass the same to the trading or profit and loss account. So आप उसको trading account में transfer करवा देंगे तो sales का balance होता है credit, you will pass the opposite effect higher purchase sales account debit to trading account, right? So I hope all the entries were clear to you. सभी situations में सभी entries हमने समझ ली। अब मैम इसका बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर कैसे देंगे। जब हम परचेजर की बुक्स में बात करें तो उनके लिए पहले तो एसेट रिकॉर्ड होगा, फिक्स्ड एसेट, ठीक है। तो हम फिक्स एसेट दिखाएंगे, एसेट्स ऑन हायर परचेज कैश प्राइस अमाउंट से, उसमें से डेप्रिसिएशन हर साल माइनस करते रहेंगे। जब हम लायबिलिटीज़ की बात करें तो हमें वेंडर को पेमेंट करना है तो वो हमारा लायबिलिटी बनेगा अमाउंट पेएबल टू वेंडर। उसमें से हम इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट माइनस करेंगे। मतलब कि आज मानो फर्स्ट ईयर है, आपका अमाउंट पेएबल 1 लाख था और 10,000 टोटल इंटरेस्ट है, तो आपका इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट एट द ईयर फर्स्ट ईयर आपका 10,000 है तो 10,000 बैलेंस आप माइनस करेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर अगर इंटरेस्ट का बैलेंस 9,000 रहा तो आप 9,000 माइनस करेंगे, राइट। जो भी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस होगा उस साल के एंड में वो आप लायबिलिटी में डिडक्ट करेंगे, राइट। क्यों मैम डिडक्ट करेंगे, इसका राज हमें बताओ। एक सिंपल सी चीज़ आप बेटा समझो कि ये जो है ना एक्चुअल में अभी अक्रू हुआ ही नहीं है, राइट। ये अक्रू हुआ ही नहीं है अभी और ड्यू हुआ भी नहीं है। सो ये एक्चुअल में वेंडर का लायबिलिटी अभी क्रिएट ही नहीं हुआ है, इसलिए हम उसके वेंडर के अकाउंट में हमने इंक्लूड करवाया था। अगर आप ऊपर देखो तो, राइट, तो उसमें से हम रिड्यूस करवा रहे हैं कि एक्चुअल में भाई ऐसा अभी कोई वेंडर का लायबिलिटी इमर्ज नहीं हो चुका है, ओरिजिनेट नहीं हो चुका है, राइट।
अब हम जब वेंडर की बुक्स में बात करें तो आपका डेटर बनेगा जहाँ से आपको रिसीवेबल मनी रिसीव होगा, दैट विल बिकम योर रिसीवेबल. सो हायर परचेजर विल बी योर डेटर. हायर परचेज डेटर को आप करंट एसेट्स में दिखाएंगे, उसमें से इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस ऑन द सेम लाइन, पैरेलल लाइन जो हमने वहाँ पे परचेजर की बुक्स में समझा, उसी लॉजिक के साथ हम यहाँ पे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को रिड्यूस करके दिखाएंगे. बिकॉज ये आपका रिसीवेबल का हक बनना ही नहीं है आज, राइट. जब इंटरेस्ट ड्यू होगा तब आपका हक बनेगा उसको रिसीव करने का. तो अभी आप उसको डेटर्स पे तौर पे खड़ा नहीं कर सकते हैं, तो हमने डेटर्स में अमाउंट इंक्लूड की थी, तो अभी हम माइनस करके बैलेंस शीट में अच्छी फेयर पोजीशन दिखाएंगे. So this was the interest suspense method, right? Now we will look forward to the illustrations. एक बात आपको बोलनी थी कि लास्ट टाइम पे मैंने आपको ये मेथड करवाई थी, कैश प्राइस एंड सेल्स मेथड. उसमें ये जो डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट मैंने आपको ऐड करवाया रही हूँ परचेजर की बुक्स में, वो आप लोग ऐड कर देना. इतना सही है, वो आप अपनी समरी बुक में ऐड कर देना था. सॉरी उस वक्त मेरा ध्यान नहीं रहा था, इसलिए ये चीज़ रह गई थी. आप वो उसको ऐड कर देना, स्क्रीनशॉट ले लेना, राइट. चलो, तो यहाँ पे ये बात भी हमारी हुई ख़त्म. ये ख़त्म होने पे अभी हमारा रहा सिर्फ इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड के सम्स एंड बाकी मिसलेनियस इलस्ट्रेशंस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस. सभी के लिए मैं इतना चीज़ बता देना चाहती हूँ कि अब हम चैप्टर के एंड पे आ गए हैं. सभी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे होते हैं ख़त्म, राइट. हमने कैश प्राइस के 2 मेथड्स देखे, इंटरेस्ट असर्टेनमेंट के मेथड्स देखे, सभी केस सिनारियोज देखे इंटरेस्ट मेथड के कैलकुलेशंस में. फिर हमने एक्स्ट्रा सम्स देखे थे, राइट. एंड फिर हम आए थे अकाउंटिंग एंट्रीज की ओर. अकाउंटिंग एंट्रीज में भी हमने दोनों हायर परचेजर एंड वेंडर दोनों ही बुक्स में दो मेथड से हमने सीख लिया. यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर कंसेप्चुअली हुआ ख़त्म. नाउ माई पोर्शन लेफ्ट फॉर हायर परचेज इज जस्ट टू कंप्लीट द सम्स. एक इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड का हम पहले इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, उसको अच्छे से समझ लेते हैं, एंड देयर आफ्टर द पोर्शन लेफ्ट इज द मिसलेनियस इलस्ट्रेशन. बाकी मैंने आपको सभी चीज़ें यहाँ पे कवर करवा दी. अब आई होप कि ये चैप्टर आपके लिए इजी बन चुका होगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ऑल्सो नाउ इट हैज़ बिकम अ स्कोरिंग चैप्टर, राइट. जो भी डिफ़िकल्टी वाला पोर्शन था अभी सभी चीज़ें निकल चुकी है. अभी ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर बन गया है, एंड इट इज़ वेरी ईजी नाउ. इट इज़ अ क्रीम बटर फॉर यू, राइट. इतना सिग्निफिकेंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अब आपको समझ में आ गया है. तो आई होप के यू विल स्कोर गुड इन दिस शुड बी द कैश मार्क्स फॉर यू, राइट. चलो, होमवर्क में आपको ये समरी मेरे को लिख के भेजनी है, राइट, पीडीएफ में. एंड यू विल नीड टू सॉल्व द सम्स, इलस्ट्रेशंस जो पेंडिंग है वो, एंड वो आपको मेरे को भेजना पड़ेगा, राइट. अब मैं आपको होमवर्क वापस बोलूँगी नहीं. हमारे सेशंस में जितने भी सम्स करे, अभी 1-2 सेशंस ही होगा इस पर, तो वो सम्स आप मेरे को पीडीएफ में लिख के भेज देना, राइट. चलो, अब हमने 6 तक सभी इलस्ट्रेशंस कर लिया है. वी विल मूव टू द 7th इलस्ट्रेशन. 7th इलस्ट्रेशन में बोलना चाहता है कि इन इलस्ट्रेशन 6 अज्यूम दैट हायर परचेजर एडोप्टेड द इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड. 6th इलस्ट्रेशन हमने कैश प्राइस मेथड से देखा था. अभी उसी क्वेश्चन को हमें इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से सॉल्व करने का वो लोग बोल रहे हैं. एंड डायरेक्टली दे आर टेलिंग अस टू प्रिपेयर द लेजर अकाउंट, दैट इज हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, FM मेसर्स अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर. तो डायरेक्टली हमें लेजर और बैलेंस शीट क्रिएट करनी है, एंट्रीज पास नहीं करनी है, लेकिन इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से करनी है. तो चलो, नो प्रॉब्लम टू इट. अब हम चलते हैं हमारी ये बुक की ओर. सो ये आपका इलस्ट्रेशन 6 जो मैंने लास्ट टाइम नई मेथड से करवाया था. यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करवा दिया है, तो मैं अभी वापस नहीं करवा रही हूँ. सम इज़ द सेम, राइट. मेरे को सिर्फ अकाउंटिंग एंट्रीज में चेंज आएगा, ठीक है. चलो, अब इसके लिए मैं आपको ऐसा बोलूँगी कि आप लोग है ना, जस्ट अ सेकेंड, आप लोग है ना ये इसमें एंट्रीज भी पास करना इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में, ताकि ये आपके लिए आसानी रहे. मैं यहाँ पे एक इंटरेस्ट वाला कैलकुलेशन है ना देख लेती हूँ. 3600, 2400, 1200. वी विल टेक अ न्यू पेज, राइट. चलो, सो आप लोग
ये ना एंट्रीज भी पास करना ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए इस मेथड की, राइट। इलस्ट्रेशन 7, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड in the books of hire purchaser, राइट। चलो इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी आप लोगों को समझ में आ गया। वो मैं रिपीट नहीं करवा रही, मैंने 6th इलस्ट्रेशन में बहुत अच्छे से करवाया है, इसलिए डायरेक्टली गोइंग। पहले हम एंट्रीज पास कर लेते हैं, राइट, ताकि अपने लिए आसानी रहे। हम हायर परचेजर की बुक्स में है। चलो क्या था, HP Messrs acquired a pickup van on hire purchase from FM Messrs, so he is the hire vendor and he is the hire purchaser, right? Now हम एंट्रीज कर देते हैं HP Messrs की बुक्स में। इन बुक्स ऑफ HP Messrs फर्स्ट होगा आपका एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट, राइट। तो आपका एसेट रिसीव होगा, राइट। सो एसेट आपका होगा डेबिट। फिर इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट होगा आपका डेबिट। टू now for the interest suspense method, first of all at the time of agreement and acquiring of asset we will pass entry asset debit interest suspense debit to hire vendor account, right। एंट्रीज इसलिए पास करवा रही हूँ ताकि आपको एक इस पे है ना ग्रिप आ जाए, राइट। इस मेथड पे कैश प्राइस आपका 1 लाख है, सो कैश प्राइस 1 लाख। इंटरेस्ट सस्पेंस आपका टोटल इंटरेस्ट 3 साल का। मेरे कैलकुलेशंस तो उस फाइल में रह गए, मैं एक दफ़ा यहाँ पे देख लेती हूँ कितना है। 7200 लग रहा है, राइट। 7200 है, राइट। हाँ 24, 36, 1200, 7200। मैम ये फिगर कैसे आया? हमने रिपेमेंट शेड्यूल में 3 साल का इंटरेस्ट ढूंढा था, 2400, 1200, 3600। मैंने उन सभी को टोटल कर दिया है, राइट। मैं ईयर वाइज लिख देती हूँ ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए। 3600, 2400, 1200। सो दिस वे 3600, दूसरे साल पे 2400, तीसरे साल पे 1200। वी नीड टू राइट टोटल इंटरेस्ट, राइट, एंड टू हायर वेंडर अकाउंट 1,07,200। आई होप द एंट्री इज क्लियर। नाउ सेकेंड एंट्री, आपका डाउन पेमेंट पे करना पड़ेगा, राइट। सो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000 है अमाउंट। सो ये हो गई आपकी नेक्स्ट एंट्री, राइट। आपने डाउन पेमेंट पे कर दिया। अब नेक्स्ट क्या आएगा? अब आपका इंटरेस्ट ड्यू होगा, राइट। आपने डाउन पेमेंट भर दिया, सो अब आपका इंटरेस्ट ड्यू होगा एट द ईयर एंड। इंटरेस्ट ड्यू होगा तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, राइट। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपका 3600 है। इंटरेस्ट ड्यू हो गया, अब आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। सो आपका हायर वेंडर डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा,
इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने एंट्री के देते वक्त समझा दिया, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं ले रही हूँ। अब आपको एंट्री समझ में आ जानी चाहिए डायरेक्टली। इंस्टॉलमेंट कितना पे होगा, फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट हमने कितना कंप्यूट किया था, ये तो फाउंडेशन वालों का है। एक मिनट बच्चा, हम है ना ढूंढ लेते हैं वो वाला सम वाला, ताकि हमें कहाँ चला गया। ये एडिशनल क्वेश्चन, ये भी नहीं, इलस्ट्रेशन 5 है ये। अब 6 भी आ जा, कहाँ गया ये, क्यों ऐसा हो रहा है, अभी तक तो था। चलो, इंस्टॉलमेंट है 23,600, 22,400, 21,200। एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ ताकि हमें याद रह जाए। 23,600, 22,400, 21,200, राइट। चलो 20,000 इन ऑल है, ठीक है। चलो अब समझ में आ गया। तो आपका ये अमाउंट आएगा कितना, 23,600। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। चलो डन। अब क्या होगा, इंस्टॉलमेंट भी पे कर दिया है, तो अब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एसेट पे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। मेरे को जब तक याद है ये आपका 10% SLM से जा रहा था। हाँ चलो, सो आपका 1 लाख का एसेट है तो 10,000 आपका डेप्रिसिएशन बनेगा हर साल, 1 लाख का 10%। अब आप इस डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर देंगे। तो आपका एंट्री आएगा P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट, 10,000, 3,600, 13,600। अब आपका नेक्स्ट एंट्री आएगा, वो है क्या आप करेंगे, इंस्टॉलमेंट पे करेंगे नेक्स्ट साल। आपका पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ये आपका फर्स्ट ईयर का था राइट। अपना ये है जनवरी 1, 2001 राइट। तो ये आपका जनवरी 1, 2001 पे हुआ था राइट। ये भी जनवरी 1, 2001 पे हुआ था। ये 31 दिसंबर 2001 पे सभी एंट्रीज इसके आगे की हुई। अब हम जा रहे हैं 31 दिसंबर 2002 पे राइट। अब मेरा इंटरेस्ट ड्यू होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 2,400 राइट। एंड आपका अब इंस्टॉलमेंट पे होगा, सभी एंट्रीज 31 दिसंबर ऑफ सेकेंड ईयर। इंस्टॉलमेंट सॉरी, आई एम सॉरी, हायर वेंडर डेबिट टू बैंक, राइट, 22,400। नेक्स्ट अब क्या होगा, इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट 10,000 राइट। फिर
पीएनएल में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। $10,000, $2,400, $12,400, राइट। ये आपका हो गया सेकेंड ईयर। अब आप आ गए थर्ड ईयर के 31 दिसंबर पे। अब आपका फिर से इंटरेस्ट ड्यू होगा। राइट। फिर आपका इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा। हायर वेंडर डेबिट टू बैंक 21,200। फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस में आपका डेप्रिसिएशन का एंट्री आएगा। डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट 10,000। SLM मेथड है, हर साल डेप्रिसिएशन अमाउंट सेम रहेगा। फिर PNL डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट कितना आएगा 11,200, 10,000, 1,200, राइट। सो दिस आर द अकाउंटिंग एंट्रीज। सो ये सब अब ख़त्म हो गया, राइट। अब आपका हायर परचेज सेल्स इसमें आएगा नहीं, तो उसका भी कोई बात नहीं आएगा। यहाँ पे आपका ये पूरा ख़त्म हो जाता है। नाउ यू नीड टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी अकाउंट्स, राइट। FM Messers account, ledger in the books of HP Messers, date, particulars, ledger folio, journal folio, amount, date, particulars, journal folio, amount, right। सो ये हुआ क्रेडिट। ये आपका FM मेसर्स बन गया। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट अकाउंट। मैं थोड़ी जगह रखती हूँ बिकॉज फिर जगह चाहिए हमें। अब ये आपका डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, राइट। इंटरेस्ट अकाउंट भी हो गया आपका। डिप्रिसिएशन अकाउंट, चलो एक नया अकाउंट बनेगा आपके लिए जो उस मेथड में हम नहीं कर रहे थे। दैट वाज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, राइट। ये आपके लिए नया बनेगा।
चलो सो ये आपका इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट भी हमने बना दिया। अब हम सभी एंट्रीज को पोस्ट करते हैं एंड फिर हम बैलेंस शीट बना लेंगे हर साल की, राइट। यहाँ पे बैलेंस शीट एज एट 31st December 2001, राइट। इस तरफ आएगा लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, राइट। ये आपका बनेगा लायबिलिटीज, ये आपका बनेगा एसेट्स। चलो आगे बैलेंस शीट दूसरे साल की भी 31st December 2002, बैलेंस शीट (31st December 2003). सो दिस इज ऑल। इतना हमारा सम का रिक्वायरमेंट है। एक एक एंट्री पोस्ट करते जाते हैं। फर्स्ट एंट्री है एसेट डेबिट हुआ है 1 लाख से। हाँ, एसेट अकाउंट आपका रह गया, यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। राइट, सो दिस इज़ योर एसेट अकाउंट। चलो सभी अकाउंट्स बन गए। फर्स्ट एंट्री आपका है एसेट अकाउंट डेबिट 1 लाख। तो एसेट के डेबिट साइड में जाके आप लिखेंगे 1 लाख और अपोजिट अकाउंट है आपका हायर वेंडर। सो एसेट के डेबिट साइड में जाके टू हायर वेंडर 1 लाख, राइट। 1 जनवरी 2001 को। फिर उसी दिन आपका इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट हुआ है 7200 से, राइट। सो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में जाएंगे, डेबिट साइड टू हायर वेंडर 7200। Now we have posted asset and interest suspense. Now credit is our higher vendor, that is FP Messers, right। यार मैंने भूल से हायर वेंडर लिख दिया, तो आई होप कि आप उसको FP Messers समझेंगे, राइट। तो मैं अभी FP Messers अकाउंट में ब्रैकेट में हायर वेंडर लिख देती हूँ, ताकि जो भी एंट्रीज में हमने हायर वेंडर लिखा है वी नीड टू पोस्ट इट डाउन हियर in FM Messers account, right। So this is the higher vendor. Now this account has been getting credited, right। So I will go to the credit side of this account, and with the 1st January 2001 I will post the entries. First January 2001 by asset account 1 lakh, right,
and by interest suspense account 7200. This way you will post it down. I hope this is clear. Right? Now we have posted the entry, first entry, and now we are moving to the next entry, that is hire vendor, that is FP Messrs account debit to bank account, right? So in the FP Messrs account, I will go to the debit side. I will write down 1st January 2001 to bank account 40,000. I am not preparing bank account, so I will not post the respective other side entry of credit. Next, now on 31st December we charged interest, right? Interest got due. So interest account debit to interest suspense account 3600. Interest account has been getting debited. I will go to the debit side and write opposite account name to interest suspense account, amount shall be 3600. Right? Now interest suspense account mein I will go to the credit side. On 31st December, by interest account 3600. So the second entry also got posted. Next entry we passed for charging the depreciation on asset. Paying installment first. Installment paid, so a hire vendor or FP Messrs debit to bank, right? So let me go to the FP Messrs account debit side. 31st December to bank, amount कितना था? 23,600. चलो बैंक का अकाउंट नहीं प्रिपेयर करी हो, आई विल नॉट गो टू द बैंक अकाउंट, राइट? Okay, so first installment is also being paid. Now we have the entry for charging depreciation on asset. So my depreciation is getting debited and asset is getting credited. Going to the depreciation account debit side, 31st December 2001, right? Depreciation account debit to assets. I am on the debit side. To asset account 10,000. 10% SLM method, right? Now I will go to the asset account and on the credit side I will write by depreciation account 10,000. Now the next entry we passed to close interest and depreciation account and transfer them to P&L. So my entry would be P&L debit to interest to depreciation. Going to the credit side of depreciation, as I am not preparing P&L, I will directly see the credit effects of depreciation and interest. First on the depreciation account, 31st December by P&L account 10,000. This account gets closed for the first year and gets tallied. Right? Now for the interest account, I will write here 31st December by P&L account 3600, and this account also gets closed. My first year entries are posted. Interest and depreciation gets closed and tallied. Now I need to find the balance of FM Messrs and asset account. So let's see. 1,07,200, right? 1,07,200. So what is the balance? To balance carry forward, please calculate the amount. 1,07,200 minus 40,000 minus 23,600. 43,600. 43,600. I hope this is done. Okay.
writing with blue to show you. Okay, now I will go to my asset account, close the asset. So buy balance carry forward 90,000. And my asset account also gets tallied with the same. Now I want that I prepare the balance sheet and give the balance sheet effects of this account. For first, I will show, if you remember, just a second, I am showing the chart where I showed you the disclosure part. If you see here, the disclosure portion is asset on hire purchase less depreciation. That is the common in both of the methods. In the liability side, we will say amount payable to vendor less interest suspense account ka balance, right? This way will be our balance sheet presentation. Okay, now coming to the our question. First, we haven't tallied interest suspense account. We forgot, right? FMS is done, interest depreciation suspense account रह गया था, right? 7200 minus 3600. So 3600 is left. Okay, by balance carry forward. When the accounts get tallied, double line it. It is a good sign to for you that this account gets tallied. Now I will go to the balance sheet for the first year. I will show my asset on hire purchase 1 lakh less depreciation 10,000, amount comes to 90,000. And right, so this is done on liability side. I will say creditors of hire purchase, that is FM Messrs account less balance of interest suspense account, and this way I will note it down. If I see, balance of FMSs is 43,600, right? 43,600 minus 3,600, amount comes to 40,000. I hope the presentation of balance sheet is clear to all of you. In this way you will disclose it. Moving further, we will now post the entries for the next year 2002. We have passed the entries, so it is easy now for the posting. First entry we passed at the year end of 2002 was interest debit to interest suspense account. Let me go to the interest account debit side. 31st December 2002 to interest suspense account 2400, right? Thereafter I will go to the interest suspense account credit side. December 2002 by interest account 2400. I hope this is done with all of you. 2400. So this entry got posted. Now we will charge interest due has been charged. Now we will pay the installment. So hire vendor debit, that is FP Messrs debit to bank account. 31st December 2002. First I need to
carry forward the balance brought forward to balance brought forward 43,600. Thereafter, to bank account amount shall be 22,400. Right now 22,400. Right now depreciation I will charge on asset 10,000. Right now installment has been paid. Now I will charge the depreciation. Right, depreciation debit to asset. I will go to the debit side of depreciation account. Right, if you see, okay, depreciation debit side to asset account 10,000. I hope this is done from your side too. Solve the sum together with me. This will give you a confidence and a better understanding. Now I will go to the asset account credit side. First let me take down the balance. So on 1st January 2002, to balance brought down 90,000. Thereafter 31st December 2002 by depreciation 10,000. Hence balance carry forward 80,000. Right? I know no entry other will come to the asset account, so I tallied it along with this. Right? Now we will transfer PNL depreciation and interest to PNL. So PNL got debited. I am not drawing PNL account, directly going to the credit side of interest account by PNL account 2400. The accounts get closed. Now for depreciation I will go to the depreciation account by PNL account 10,000 and the same gets closed. Right? If you see, the entries are posted for the second year also. Let me calculate the balance of now interest suspense and FM measures. $21,200 right, this will be 43,600. This will be 43,600. Now interest suspense account. First I needed to bring down the balance, which I forgot. 1st January 2002 to balance brought down 3,600, and with this now 1,200 shall be the balance carry forward by balance carry forward 1,200. Right, and the accounts get tallied. Going to the balance sheet of next year, first I will post down the asset on hire purchase $90,000 less depreciation 10,000
Amount comes to 80,000. Balance sheet. Trade creditors of hire purchase, FM Messrs. Balance was 21,200 less balance of interest suspense account. 1200. Outside column you will calculate 20,000. Here our second year also gets finished. Now the third and the last year for the sum. Same entries, right? Let's do it. Interest debit to interest suspense. Now increase the speed. I hope now you are getting the grip over it. I must not read one again and again the entries. 31st December 2003 to interest suspense account. On the debit side of interest account, 1200. Moving towards the interest suspense account, first take the balance brought forward on 1st January 2003 to balance brought forward 1200 by interest account 1200. The account gets tallied, right? Now if I move towards next entry, it was paying the installment, right? Installment was 21,200 for the last year, right? So first let me bring down the balance. FP Messrs 1/1/2003 to balance brought forward 21,200. 31st December 2003 to bank account 21,200. Again this account also gets tallied. Bank account I am not preparing, so I will not give any effect to that account. Next entry will be charging depreciation. So depreciation account debit to asset account. 31st December 2003 debit side of depreciation to asset account 10,000. It was straight line method 10%, but it was straight line method. The amount comes to be same for each and every year. Yeah. So don't get the mistake there, right? Now in asset account, first of all balance brought forward 80,000, and on the credit side 31st December 2003 by depreciation account 10,000. Balance carry forward 70,000, and the account gets tallied. Interest suspense tallied, asset tallied. Now we need to close interest and depreciation. FM message is also tallied. So closing interest account, it will be transferred to PNL debit to interest. So credit side of interest by PNL account 1200. The same gets tallied. Thereafter on the credit side of depreciation account by PNL account 10,000, the same gets tallied. Now each and every entry for the third year has been posted and accounts gets tallied. Going to the balance sheet, there will be no FM Messrs account, no interest suspense account. So liability side there will be nothing, right? Directly on the asset side, asset on hire purchase 80,000 less depreciation 10,000, that comes to 70,000.
Here the sum gets completed. I hope now you are familiar with this method and you got a grip over this method. Interest suspense method. Method is very easy, similar to cash price and sales method. Only and only the accounting of interest has been changed. Now if you look over to the illustrations, you can see that we have completed 7 illustrations of the module and few practical questions also have been covered. Right? Now we will come to this miscellaneous illustrations and we will cover this miscellaneous illustrations 8, 9, 10, 11 in our next installment payment system. I taught you the difference between both. I have taught you already. So 8 to 11, 4 illustrations left. Thereafter we will have a look over MCQs also. Practical question. Question 1 has been calculated. We calculated the cash price while ascertaining interest and cash price. Next, ascertain cash price, that has also been done. So question 1 and 2 are done from my side. Question 3 part 1 is completed, only part 2 is left. So 8 to 11 illustrations and practical question 3 second part is left from my side. MCQs we are discussing just now, so it gets over and thereafter we will have just only few sums pending from my side. The amount paid, if you see the MCQs, let's discuss it. First is the amount paid at the time of entering hire purchase transactions for the goods purchased is known as. So the amount paid at the time of entering hire purchase transaction. So when you are agreeing the agreement, right, when you are accepting the agreement and entering into the hire purchase agreement and you are taking over the goods, at that time you will pay an amount that is called to be a down payment, right? At the upright of agreement you pay the upfront of agreement, you pay the amount is termed to be the down payment. Next is total interest on hire purchased goods is the difference between hire purchase price and cash price, if you can understand. Higher the interest amount for the total interest amount will be what? Difference between higher purchase price and cash price, because higher purchase price is nothing but inclusion of cash price and interest, right? So A option is correct. Next, depreciation on higher purchased asset is claimed by. So who will claim the depreciation? Hire purchaser, right? You saw that we are passing entries for depreciation in the books of hire purchaser and not the hire vendor, due to because we are following the accounting concept called as substance over form. This is a very good concept. If you can understand in the law, you understood in the law, company law, that lifting of corporate will, that is similar to substance over form. Draw out the substance, the fact of the situation and don't look over to the legality, right? So here hire purchaser will be the answer. B option is correct. Next, under installment payment system, ownership of goods. चलो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या होगा? इंस्टॉलमेंट ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट only installment, only the payment of the amount is deferred. Ownership and possession both are transferred at the time of agreement, when you are entering into agreement. In the hire purchase, there is the only difference, the ownership gets transferred on in the at the time when all the installments are paid, right? So if you see, answer will come, it is transferred at time of signing the contract, right? So C option is correct. Next, the hire purchaser records the asset at its cash price. Asset is always recorded at its cash price because the hire purchase price includes cash price plus interest portion. Interest portion cannot be termed to be the capital expenditure and cannot be capitalized with the amount of asset. So we only and only record asset at the cash price. I hope you are getting it. The interest charged because interest is charged because you are deferring the payments and it will be the revenue expenditure for hire purchaser, right? So cash price is the correct answer.
Next, the ownership of goods purchased under hire purchase is transferred only when down payment is paid, outstanding balance is paid, or cash price and first installment is paid. So here if you see, ownership of goods purchased is transferred only when आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज पेड इन फुल. जितना भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है राइट, वो पूरा का पूरा आप जब पे कर देते हैं तब आपका ओनरशिप ट्रांसफर आपको होगा राइट. नेक्स्ट, हायर परचेज प्राइस क्या है? कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट ऑन द अनपेड इंस्टॉलमेंट. सो दैट विल बी बोथ ए एंड बी. The theoretical questions are just hire purchase and features. From the examination point of view, theory questions are not much important, but we have looked over to the each and every portion of theory also, right? Difference also we have learned. I hope you are clear. Only 8 to 11 illustrations and third question, second part of exercise has been left by us, that we will cover in our next session. Have a good reading and cover this interest suspense method so that we get ready for the miscellaneous illustrations. Revise the chapter, prepare the summary of our hire purchase, right? Each and every portion. Just now I will you saw that we took over the summary of this accounting entries, interest suspense method also. So that also you prepare it and write down in the summary books. Sums you calculate in the sums book, right? And if you have any doubts, you can contact me. For now, we will end up here because miscellaneous illustrations, I want that you be prepared with revising the whole chapter, and in the next session, we will take the miscellaneous illustrations so that you are ready with each and every concept and we can do it easily, right? Thank you so much.